গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। আজকেও আমি এসে গেছি প্রতি মঙ্গলবারের মতন আপনাদের কাছে একটা দারুণ পাওয়ারফুল সাকসেস স্টোরি নিয়ে। আজকে এমন একটা সাকসেস স্টোরি আপনাদেরকে শোনাবো, আপনারা প্রত্যেকে রিলেট করতে পারবেন যে এই বিজনেসটাতে, আমাদের এই ভেস্টিজ বিজনেসে কত ধরনের গল্প আছে, কত ধরনের ইন্সপায়ারিং স্টোরিজ আছে। আজকের স্টোরিজ আমি ডেফিনেটলি আজকে এইটুকুনি বলতে পারবো, যিনি আজকে আপনার জীবনে মনে করছেন যে আপনার জীবনের আর কোনো কিছু পাওয়ার নেই, তিনিও একটা ইন্সপিরেশন পাবেন, তিনিও আজকে একটা রাস্তা পাবেন। আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে ভেস্টিজ একটা মানুষের লাইফ কিভাবে চেঞ্জ করতে পারে। ফ্রেন্ডস, আজকে আমি অন্য একজন স্টেট, ইন্ডিয়ার অন্য একটা স্টেট থেকে এমন একজন লেডিকে ইনভাইট করব। শি ইজ রিয়েলি টাইগ্রেস। ম্যাডামের নাম সবিতা ছেত্রী, উনি ইউনিভার্সাল ক্রাউন ডাইরেক্টর। এই লকডাউনের আগেই আমরা ওনার একটা সেমিনার করেছিলাম কলকাতাতে, এবং ইট ওয়াজ সুপার এক্সেলেন্ট। ওনার কথা আমি 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 নিজে আপনাকে বলতে পারি, হতে পারি আমি একজন ডবল ইউনিভার্সাল ক্রাউন ডাইরেক্টর, বাট ওনার অনেক কথাই আমাকে ইন্সপায়ার করেছে, মোটিভেট করেছে। আমি নিজেই অনুপ্রাণিত হয়েছি, কারণ আমি এটা ফিল করেছি আমার লাইফে এত স্ট্রাগল, এত প্রবলেম হয়তো ছিল না যেটা ওনার ছিল। আমরা প্রত্যেকে মনে করি যে আমার কাছে যে স্ট্রাগল আছে, আমার কাছে যে প্রবলেম আছে, সেটার থেকে বড় প্রবলেম বোধহয় কারো কাছে নেই। কিন্তু আমরা এমন একজন লেডির বক্তব্য আজকে শুনবো, যিনি এই বিজনেসে সফলতার এমন জায়গায় পৌঁছেছেন যেখানে আজকে অনেক কিছু স্বপ্ন মনে হতে পারে। সো ফ্রেন্ডস, আর দেরি না করে, 3টে বাজতে 1 মিনিট বাকি, বাংলাদেশ টাইম 3:30 হতে আর 1 মিনিট বাকি। আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনারা ম্যাক্সিমাম ফোন কলস করুন, আপনাদের গ্রুপে জানিয়ে দিন, গেস্টকে জানিয়ে দিন, ডিস্ট্রিবিউটরদের জানিয়ে দিন, এবং আপনি আজকে একটা অসাধারণ একটা পাওয়ার টকের সামিল হন। নেক্সট 40-45 মিনিটস আমি আপনাকে এইটুকুনি বলতে পারি, আপনার একটা লাইফ চেঞ্জিং প্রোগ্রাম হতে চলেছে। এবং এই প্রোগ্রাম, আমি শুধু কথা বলবো, হয়তো উনি হিন্দিতে বলবেন, সবিতা ম্যাডাম তো বাংলাতে বলতে পারবেন না, ডেফিনেটলি আমি বাংলাতে এক্সপ্লেইন করে দেব যেগুলো উনি বলছেন। সো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, প্রত্যেকে নেক্সট 45 মিনিটসের জন্য, নেক্সট প্রোগ্রামের জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো যে রেডি হয়ে যান এবং এনজয় করুন আজকের এই সেশনটাকে, যেটা একটা মাইন্ড ব্লোয়িং সেশন হবে। সো ফ্রেন্ডস, হোপফুলি আপনারা সবাই প্রিপেয়ার্ড হয়ে আছেন। আমি অলরেডি লাইভে দেখতে পাচ্ছি অনেকে লাইভে চলে এসেছেন, লাইভ শেয়ার হতে স্টার্ট করেছে। ইট ওয়াজ অ্যান অ্যামেজিং প্রোগ্রাম হবে, আমি আপনাদেরকে এইটুকুনি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, এবং আমি আপনাদেরকে আজকে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি সবিতা ছেত্রীর সঙ্গে। सविता मैम, आई थिंक यू आर देयर। आप अपने आप को अनम्यूट करके, आपका वीडियो ऑन करके आप मैम आ सकते हैं। वेलकम मैडम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम मैडम। आपको सुनने के लिए आज बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और इंडिया के डिफरेंट स्टेट से लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। सो सिर्फ जूम में आप और मैं हूं, वी विल टॉक, एंड आपकी बात सुन के आज शायद हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। जो लोग इंस्पिरेशन, जिन लोगों को चाहिए, जो लोग सोच रहे हैं कि जिंदगी में और कुछ नहीं होने वाला है, शायद उन लोगों की जिंदगी में कुछ आप रोशनी डाल सकते हो आज। सो मैम वेलकम। थैंक यू। मैं अभी गैलरी व्यू में दे रहा हूँ, अभी स्क्रीन में यू एंड मी। सो मैडम, आपका सिक्किम में अभी सिचुएशन क्या है, कोविड का सिचुएशन क्या है? अभी लॉकडाउन तो खुला है, लेकिन एवरीडे वहाँ पर कोविड पेशेंट तो बढ़ रहा है। एवरीडे 40, कभी कभी 30 केसेस बढ़ रहा है। और दिन में 1-2 लोग ये फर्टिलिटी भी हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। अच्छा। तो फिर भी उतना ज्यादा नहीं है, सब लोग प्रिकॉशन ले रहा है और उतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ग्रेट। सब ठीक है। अभी स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन बाकी मार्केट और सब कुछ खुला हुआ है। ओके, ग्रेट। अभी पैंडेमिक ऐसा सिचुएशन आया कि लोगों को मतलब मजबूर कर दिया कि घर में रहने के लिए। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत डाउन हुआ,
बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग ऐसे इंडस्ट्री में हैं कि हम लोगों को ये इम्पैक्ट नहीं हुआ। और ज्यादा और सबसे अच्छा चीज ये हुआ कि इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, हम लोगों को बिजनेस में बहुत मतलब ग्रोथ मिला, बहुत अच्छा कुछ हुआ है। शायद आपकी बिजनेस में हुआ होगा, वो हम लोग बातचीत में हमको पता चलेगा। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা শুনছেন আমাদের সঙ্গে প্রেজেন্ট হয়ে গেছেন সবিতা ছেত্রী ম্যাডাম, যিনি একজন ইউনিভার্সাল ক্রাউন ডাইরেক্টর এবং সিকিমে উনি থাকেন। বিউটিফুল স্টেট, ওয়ান অফ দ্য বিউটিফুল স্টেট। আপনারাও জানেন বাংলাদেশ থেকে যারা আছেন, সিকিমে ঘোরার জন্য আলাদা পারমিট লাগতো, এখন ওপেন হয়ে গেছে। এখন দারুণ একটা স্টেট, আপনারা ভিজিট করতে পারেন। এবং সেখান থেকে আমরা আজকে আমাদের গেস্ট গ্ল্যামারাস সবিতা ছেত্রী ম্যাম, যাকে ওয়ান্ডারফুল দেখতে লাগছে এবং আমাদের প্রোডাক্টস ডেফিনেটলি ওনার লাইফ চেঞ্জ করেছে, ওনার বিউটি এনহ্যান্স করেছে এবং অনেক কিছু করেছে, সেগুলো আমরা ওনার থেকে শুনতে পাবো। सो मैम, पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि थोड़ा आपका बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसा हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं थोड़ा, अगर, क्योंकि यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ और हर कोई अपना सेलिब्रिटी का बैकग्राउंड स्टोरी जानना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग शुरुआत करें आपकी बैकग्राउंड स्टोरी से। ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। और इंडिया से लेकर अभी बांग्लादेश के फ्रेंड्स को भी मिलने का मौका मिला, फ्रेंड्स के साथ भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हीरोक सर। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं इंडिया के ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक स्टेट है, जिस स्टेट का नाम है सिक्किम, और इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है। और वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरा जन्म हुआ था सिक्किम का एक गांव है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, डिक्चू, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और मैं बहुत छोटा परिवार से और ग्रासरूट परिवार से बिलोंग करती हूँ, जो मेरे घर में कोई एम्प्लॉय नहीं थे और मेरे पापा खुद वो एक लेबर वर्क करते थे। और हम बहुत सारे भाई बहन थे, 6 भाई बहन थे। और सबसे बड़ी मैं हूँ और मेरे नीचे और 2 बहन थे, उसके बाद 4 भाई थे। इसी तरह से हमारा मेरा बचपन गुजरा। और बचपन में ज्यादा बच्चे होने के कारण और पापा का उतना अर्निंग सोर्स नहीं थे, मेरे मम्मी हाउसवाइफ थी और वो पढ़ा लिखा नहीं है, और मेरा पापा भी उतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो और उनका मानना था कि लड़की को पढ़ना नहीं चाहिए, मतलब 5 क्लास तक पढ़ने से होगा, नाम लिखना आ गया ना तो होगा, उसके बाद घर का काम काज करना पड़ेगा और लड़के लोग जो है उनको पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा उनका सोचना था, क्योंकि वो उनका सोच भी मेरे ख्याल से उनके हिसाब से और उनका सिचुएशन के हिसाब से ठीक ही था, क्योंकि इनकम सोर्स नहीं थे। 2 वक्त के खाने के लिए भी उनको मुश्किल पड़ता होगा, क्योंकि 7 बच्चे को पालना और उस टाइम में बहुत कठिनाई होगा। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। और क्लास 5 के बाद पापा ने कहा कि न, मैं नहीं पढ़ा सकूंगा तुम्हें, और तुम्हें घर का कामकाज दिखना है, भाई बहन को दिखना है। फिर मैंने क्लास 5 में मेरा स्कूल बंद हुआ और मैं 1 साल घर में रही, और घर में भाई बहन को देखती, केयर करते हुए, मम्मी को काम में हेल्प करती हुई। लेकिन मैं साल भर रोती रही कि मुझे सब लोग मेरे फ्रेंड्स स्कूल जाते थे तो मैं देखती थी और मैं रोती थी। मुझे बाड़ी में काम करना खेती बाड़ी में भी जाना पड़ता था, और गांव में हर जगह, मतलब वो जो भी एक 12 इयर्स की लड़की को मतलब एक बड़ा एडल्ट जैसा काम करना पड़ता था, इस तरह का सिचुएशन था मेरा। फिर 1 साल के बाद मेरा मामा जो है क्लास 10 का एग्जाम दे के और प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए मेरे गांव के वहां पर जो सेकेंडरी स्कूल था वहां पर आए थे सब। मैं तो फिर उनको पकड़ के मैं रोई, और मामा मुझे स्कूल जाना है, मुझे कैसे भी करके स्कूल जाना है।
फिर मामा ने मेरे पापा को बहुत समझाया और पापा ने बोला ठीक है जा सकती है, लेकिन मैं इसके लिए कुछ खर्च नहीं करूंगा, मेरे पास खर्च नहीं है, इसके लिए स्कूल के कपड़ा लेने के लिए खर्च नहीं है, किताबें लेने के लिए खर्च नहीं है, तुम अपना खुद अपना मर्जी करो, ऐसे बोले थे। और मैं जिद्दी थी, बचपन से ही मुझे पढ़ना था। फिर मैं स्कूल गई, मामा ने मुझे स्कूल ले गया और मैं स्कूल में बहुत बेस्ट स्टूडेंट थी, हर साल फर्स्ट डिवीजन आती थी। तो जैसे टीचर को बोला कि इसको पढ़ाना है, फिर से एडमिशन देना है, तो टीचर ने, स्कूल का सारा टीचर ने बोला हाँ ये तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन ये इसको क्यों स्कूल नहीं भेजा गया, ठीक है इसको फिर से एडमिशन देते हैं। ऐसे करके फिर मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ। और आप लोग को सुन के ताजुब होगा कि महीने का, साल में 2 महीने का विंटर वैकेशन होते थे स्कूल में। तो मैं अपने पढ़ाई के लिए 2 महीने विंटर वैकेशन में मैं भी लेबर वर्क करने रोड में जाती थी। और जो लोग वहाँ का सुपरवाइजर होते थे वो बोलते थे बच्चे को कैसे काम दे, तो इसको क्या काम दे, ऐसे कैसे होगा। फिर मैं उनको भी मतलब जो वो लोग अच्छे थे शायद, और मैं बोली कि मुझे पढ़ना है इसलिए मुझे काम दो, मुझे कम से कम 2 महीने काम करके पैसा बनाना है और वो पैसे से मुझे स्कूल का ड्रेस लेना है, कॉपी लेना है। तो फिर उन्होंने शायद सिंपैथी के कारण मुझे काम देते थे और छोटा मोटा जो जितना हो सकता था मैं करती थी। ऐसे करके 2 मंथ में मेरा ऐसे 5, उस टाइम में लगभग 800-1000 का वो अर्निंग होता था। तो उसी से मैं अपना कपड़ा और स्कूल का खर्च उठा के मैं क्लास 8 तक गई हूँ स्कूल। और क्लास 8 के बाद क्लास 9 में जाना था तो खर्च ज्यादा था, तो फिर मेरे पीछे कोई नहीं था कि इसको पढ़ाना चाहिए। पापा तो खिलाफ थे लेकिन पीछे भी कोई नहीं था। तो फिर मैं क्लास 8 में भी फर्स्ट डिवीजन आई थी, और वो फर्स्ट डिवीजन आने के बावजूद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा और घर में फिर रहने लगी। और बस्ती में, शायद आप लोग को वहां पर होता है कि नहीं होता है, कब कोई बस्ती में उस टाइम में, आज से मैं 25 ईयर्स बिफोर का बात कर रही हूँ, उस टाइम में घर में ना माँ और पापा शाम को ना दारू पी के लड़ाई करते थे और बच्चे लोग सबको भागना पड़ता था। और मेरा भी वैसा ही हाल था। और उस टाइम मेरा एज 15-16 ईयर्स का थी मैं। और फिर ऐसे करते करते और फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था और मैंने शादी की, और लगा कि शादी करने के बाद अच्छा लाइफ होगा। फिर शादी करने के बाद तो अच्छा लाइफ नहीं हुआ, क्योंकि पता ही नहीं था शादी क्या है, दुनिया क्या है, घर क्या है, कैसे चलाना है, कुछ भी पता नहीं था। और इस ऐसे एज ऑफ 20 आते आते मेरा दो लड़की थी मेरे पास, और एज ऑफ 22 होते होते फिर मैं 2 लड़की और मैं सिंगल बन गई। क्योंकि मेरे पति भी छोटा ही एज में शादी की थी, तो वो भी इमेच्योर थे। तो फिर वो जब मैच्योर हुआ तो फिर मुझे छोड़ के चले गए दूसरा को लेके। शायद मेरा हेड नहीं मिला होगा। तो इस तरह से मेरा बचपन गुजरा और ऐसे मेरा शादी तक मैं ऐसे आई। ओके मैं सविता जी, थोड़ा आपका जो स्टोरी अब तक का जो स्टोरी आपने बताया, मैं थोड़ा बंगाली में, जो मेरा बंगाली फ्रेंड्स है, ऑडियंस है, सुन रहे हैं, उनको हम थोड़ा ब्रीफ कर दें। যেমন আপনারা সবিতাজির কথা শুনেছেন, উনি হিন্দিতে বলেছেন, আমি একটু ব্রিফ করে দিই। উনি যেটুকুনি কথা বলেছেন যে উনি যে ফ্যামিলিতে জন্মেছেন, একটা সিকিমের একটা ছোট গ্রাম, সেখান থেকে উনি একটা বস্তিতে জন্মেছেন। ওনার ফ্যামিলিতে খুব একটা বেশি ফিনান্সিয়াল বা চাকরি করতে এমন ফ্যামিলিতে উনি জন্মাননি। এবং ওনারা 3 বোন, উনি বাড়ির সবার বড়, 3 বোন এবং তারপর 4 ভাই। এবং যেটা হয় আমাদের এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে বা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, মানে খুব গরিব ঘরে খুব জন্মালে সে মেয়েদের থেকেও প্রায়োরিটি সবসময় ছেলেরা বেশি পায়, ছেলেরা এডুকেশন করবে, সেই কারণে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানো হয়নি। এবং উনি পড়াশোনা করতে চাইতেন, কিন্তু না, ওনাকে কাজ করতে হতো ঘরের, ওনাকে কাজ করতে হতো খেতি বাড়ি, মানে হচ্ছে চাষবাসের কাজে পাঠানো হতো। তারপর ওনার এক মামা আসেন ওনাদের গ্রামে, ওখানে সেকেন্ডারি আমাদের এখানে হায়ার সেকেন্ডারি বলে, ওখানে এক্সাম দিতে। তখন মামাকে বলেন যে মামা আমি পড়াশোনা করতে চাই। তখন মামা অনেক কনভিন্স করে ওর বাবাকে বলে যে ঠিক আছে, ওকে যখন পড়াশোনা করতে চাই তুমি ওকে পড়াশোনা করতে দাও, কেন পড়াশোনা করতে দিচ্ছ না? তো তখন বাবা অ্যালাউ করে, ঠিক আছে পড়াশোনা করবে, কিন্তু আমি কোনো খরচ দিতে পারবো। ওর যদি নিজের খরচ নিজে তৈরি করে কাজ করতে পারে তাহলে পড়াশোনা করতে পারে, তাহলে করবে। তো তখন থেকেই ও নিজে নিজে কিছু কাজ করে রোজগার করে সে
করতে চাইতো, কিন্তু যেহেতু পড়াশোনায় ভালো ছিল স্কুল ওকে কোঅপারেট করতো। আর উইন্টার সিজনে যখন 2 মাস, যেমন আমাদের গরমের জায়গাতে আমরা সামারে ছুটি পাই, সেরকম শীতের দেশ মানে এই সব স্টেট গুলোতে উইন্টার সিজনে 2 মাসের ছুটি হয়, কারণ খুব ঠান্ডা থাকে। সেই সিজনে ও লেবারের কাজ করেছে, রোড কন্ট্রাক্টরের কাছে গিয়ে লেবারের কাজ করেছে এবং রোজগার করেছে, যাতে ওই টাকা দিয়ে ও পড়াশোনা চালাতে পারে। বাট এইভাবে ও ক্লাস 8 অবধি পড়াশোনা কমপ্লিট করতে পেরেছে। ক্লাস 8 অবধি পড়াশোনা কমপ্লিট করার পর তারপর যে ফ্যামিলি লাইফ খুব ভালো ছিল তা নয়। সাধারণত আমাদের এই ফ্যামিলি গুলোতে, মানে পাহাড়ি এই জায়গাগুলোতে মানে ছেলেরা খুব কম কাজ করে, মহিলারাই অনেক বেশি কাজ করে। যেটা ওনার ফ্যামিলিতে প্রবলেম ছিল সেটা হচ্ছে যে বাবা যেহেতু ড্রিঙ্ক করতো, মদ খেতেন বা এই ধরনের ছিল, ফ্যামিলিতে প্রচুর অশান্তি হতো, বাচ্চারা ভয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হতো, এরকম সিচুয়েশন। সো এরকম স্ট্রাগলিং টাইমে ওনার মনে হয়েছে বিয়ে করে ফেললেই বোধহয় প্রবলেম থেকে সলভ হবে, এবং উনি এট দ্য এজ অফ 15-16 এরকম এজে অল্প বয়সে উনি বিয়ে করে ফেলেন। এবং বিয়েও করেন যাকে তারও বয়স অল্প ছিল, ইম্যাচিওর ছিল, এবং 20 বছর হতে হতে অলরেডি তার কাছে দুটো বাচ্চা, দুটো মেয়ে অলরেডি সবিতাজি জন্ম দেন। এবং যখন 22 বছর বয়স হয় তখন তার হাজবেন্ডও আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে করে চলে যান, ওনাকে সিঙ্গেল ফেলে রেখে। সো ফ্রেন্ডস, এখনো অবধি আমরা যেটুকুনি শুনলাম তাতে আমরা স্ট্রাগল, পেইন এগুলোই শুনলাম সবিতাজির কাছ থেকে। সো যখন আমি এবার ওনাকে প্রশ্নটা যেটা করতে চাইছি, সবিতাজি, अभी at the age of 22 you are single mother now and yes. you have two kid. So उसके उस टाइम आप कैसे अपने आप को संभाला और किस तरीके से आप दिन गुजारते थे? हाउ इज मतलब आपकी फैमिली में तो आपका कोई सपोर्ट नहीं था, ये समझ में आ गया, आपका हस्बैंड भी आपको छोड़ के चला गया। सो किस तरीके से आपने आपकी फैमिली, आपकी उस टाइम आपने गुजारा? फिर मैंने कभी काम तो नहीं की थी शादी के बाद। तो मैं हाउसवाइफ थी और 2 बच्ची थी। मेरा छोटी लड़की 5 इयर्स की थी और 4 इयर्स की थी, और बड़ी लड़की 6 इयर्स की थी। तो फिर मुझे बहुत सारा ऑप्शन आया कि किसी के घर में बर्तन मांजने से भी पैसा आता है, और किसी के बच्चे को स्कूल ले जाने का, लाने का, वो बच्चे को केयर करने का काम करने से भी पैसा आएगा। और फिर दूसरा ऑप्शन था फिर से लेबर वर्क करो, वहां से भी पैसा आएगा। क्योंकि मेरे पास डिग्री तो नहीं था कि मैं जॉब ढूंढने जाऊं। फिर मैंने बहुत सोचा, और सोचने के बाद मैंने सोची कि नहीं, मुझे काम करना है, लेकिन इतना नीचे का काम नहीं करना है। मतलब इतना बर्तन मांजने का काम तो नहीं करूंगी मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी करके मैंने फिर मार्केट में जाके एक एक दुकान में जाके पूछा कि आपको स्टाफ चाहिए, मैं शायद स्टाफ दुकान में कोई काम मिले। तो फिर ऐसे करके मुझे एक दुकान में काम मिला, और वो मैं पोछा लगाने का ही काम मिला बाद में। क्योंकि मेरा पढ़ाई पूछते थे तो मुझे ना तो सेल्स गर्ल में देते थे, ना तो मुझे काउंटर में कहीं पर भी नहीं देते थे। वो बोला कि आपको ना सुबह आके झाड़ू पोछा लगाना है और दिन भर रहना है, और जब कस्टमर आके जाएगा फिर दुकान गंदा होगा तो फिर आपको साफ करना पड़ेगा। और उस टाइम में मुझे 500 रुपीज दिए थे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, 1 रुपया नहीं है तो 500 रुपीज ही ठीक है। फिर 500 रुपीज में मैंने झाड़ू पोछा लगाने का काम किया एक फॉरेन शॉप में, जो रेडीमेड गारमेंट का बड़ा शॉप था, वहां पर शॉप में जाके काम किया। और काम करते करते 1 महीना 2 महीना के बाद भगवान ने मुझे कुछ ना कुछ भगवान का इशारा तो था, क्योंकि मेरे पास मैं जो भी बोलती थी लोगों से तो वो लोग मुझसे ना खुश होते थे। तो मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद जो टाइम मिलता था और जो सेल्स गर्ल कस्टमर को हैंडल करते थे तो वही काम मैं भी करने लगी। और जब कस्टमर आते थे तो मैं बोलती थी, मैडम आपको ये ना स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है, आपको शूट हो रहा है, ये कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा शूट होगा, आप ना ये कपड़ा लो, ये आप ट्रायल करो ना। ऐसे करके मैं जब किसी भी कस्टमर को हैंडल करती थी तो मेरे से एक ना एक चीज तो वो लेते थे। और जो दुकान का मालकिन था, जो मैडम था, वो मुझे ऑब्जर्व कर रही थी 1 महीने से। फिर 1 महीने के बाद मैडम ने एक दिन बोला कि सविता तू बाद में जाना, सब स्टाफ को छुट्टी दिया, मुझे बाद में जाना बोला।
फिर मैं बाद में मैम के साथ मिली तो मैम ने बोला कि मैं देख रही हूँ कई दिन से कि आप अच्छे से कस्टमर को हैंडल कर रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ, आप ना आपके जैसा कोई एक लड़की को ढूंढो जो झाड़ू पोछा का काम करे, और मैं आपको सेल्स गर्ल में प्रमोशन करूंगी, आपको सेल्स गर्ल में दूंगी। तो फिर मैं बहुत खुश हुई और फिर मैंने ढूंढा और फाइनली एक लड़की मिला और मेरे प्लेस में उसको लेके गई और मैं सेल्स गर्ल बन गई। फिर सेल्स गर्ल बनने के बाद मैं फुल टाइम होल डे कस्टमर हैंडल करती थी, और दशहरा और पूजा के टाइम में, और यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट बहुत आते थे तो बहुत भीड़ लगती थी, तो मैं अकेली 2-3 कस्टमर को हैंडल करती थी और काउंटर में जाके ना मैं कपड़े इनका इतना इनका इतना इनका इतना करके देती थी। और काउंटर में जो था वो एक मैनेजर था, मतलब वो पढ़ा लिखा, कॉमर्स पढ़ा लिखा हुआ, ग्रेजुएशन खत्म होकर किया हुआ, उसको इंटरव्यू दे के रखे थे मैडम ने कि बड़ा दुकान था एक्चुअली वो, तो उसको करना क्या था, ये कपड़ा का इतना 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 करके ऐड करके कस्टमर को पैसा लेके वापस करके जल्दी जल्दी कस्टमर को मतलब सर्विस देना होता था। लेकिन वो सर क्या करते थे भैया कि वो कैलकुलेटर के ऊपर हिसाब करते रहते थे, तब तक मैं बोलती थी भैया इनका इतना हुआ है, आप इतना पैसा लो, इतना वापस करो। तो मैं उनका काम मैं ही करती थी, आगे सर ने भैया इनका, मैं जब तक कस्टमर को सामान दे देती थी तब तक मेरे दिमाग में वो सब फाइनल होता था कि इनका इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, टोटल इतना हुआ, तो वो जितना भी पैसा दे उसमें कितना वापस करना है वो मेरे दिमाग से आता था। तो फिर मैं बोलती थी कि इनको इतना दो, तो इतना वापस करो, इतना लो, तो फिर वो भी मैम ने ऑब्जर्व की। और फिर एक दिन फिर से मुझे 3-4 महीने के बाद मैम ने बोले तू बाद में जाना, फिर मैम रही और फिर मैम ने बोला तू मुझे झूठ तो नहीं बोल रही, तू क्लास 8 पढ़ी हुई है, क्योंकि तू कैसे ऐसे कैलकुलेट कर लेती है दिमाग में इतना जल्दी। तो मैं पहले स्टूडेंट लाइफ से बहुत साफ माइंडेड माइंड था मेरा, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। फिर मैम ने बोला तो एक काम करो, मैं शिवा को छुट्टी देती हूँ, आपको तुमको यहाँ पर काउंटर में रखती हूँ, क्योंकि मुझे फास्ट सर्विस देने वाले और दिमाग जल्दी से चलाने वाले स्टाफ चाहिए। तो उस टाइम में मुझे खुश भी हुई और बुरा भी लगा, क्योंकि किसी का जॉब जा रहा था तो मैं क्या बोलती। फिर मैम ने बोला तू ना नेक्स्ट मंथ से काउंटर में आएगा, पता नहीं कैसे सर को छुट्टी दे दिया और मेरा प्रमोशन हुआ काउंटर में। इस तरह से फिर मुझे 2000 मिलने लगा, और उसमें मैं कम से कम 3 इयर्स काम किया, और 3 इयर्स के अंदर अंदर मुझे इतना तो पता चला कि सामान ला के सेल करने से अच्छा इसमें प्रॉफिट है। क्योंकि बाद में ऐसा करते थे मैम कि मैम बैंकॉक जाते थे, काठमांडू जाते थे, और पूरा का पूरा सामान और लिस्ट सब पूरा दुकान ही मेरे ऊपर आया था, मैं पूरा दिन में 1.5-2 लाख का हिसाब किताब सब करने लगी थी। तो मैं फिर उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, दूसरा के दुकान में करने से बेटर अपना खुद करने से अच्छा रहेगा। फिर मैंने मैम को एक दिन बोली कि मैम मेरा खर्च ज्यादा है और 2000 से घर नहीं चल रहा है, बच्चे भी बड़ी हो रहे हैं, तो मुझे खुद का बिजनेस करना है। फिर मैम ने बोला ठीक है, तो तू फिर तुम्हारे जैसे किसी को लेके आओ और तुझे मैं छुट्टी दूंगी। फिर मेरे जैसा किसी को मतलब किसी को अपॉइंट करके मैंने डोर टू डोर बिजनेस शुरू की। डोर टू डोर, अब दुकान खोलने के लिए उतना पूंजी तो नहीं था, लेकिन 1000, 2000, 5000 में कुछ कुछ ला के डोर टू डोर सेल करती थी। इस तरह से मैं घर चला रही थी एक्चुअली। लेकिन डोर टू डोर करने से पैसा तो आता था लेकिन बचता नहीं था, बैलेंस नहीं होता था, आज कम है आज ही खत्म होता था। लेकिन थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा हल्का हुआ था, कुछ अपने मन में बच्चे को क्या चाहिए वो दे सकती थी, लेकिन बैलेंस नहीं होता था, फ्यूचर में सिक्योरिटी नहीं था। इस तरह से चल रहा था सर मेरा लाइफ। ওকে, আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন কারণ সবিতাজি খুব সুইট হিন্দিতে বলছেন এবং ধীরে ধীরে বলছেন, তো আমাদের বোঝার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। বাট আমি তারপরে আপনাকে একটু ব্রিফ করে দিই। ওনার যখন উনি একা হয়ে গেলেন বাচ্চাদের নিয়ে, ওনাকে কি করতে হলো, উনি চাকরির জন্য খুঁজতে শুরু করলেন বিভিন্ন জায়গায়। প্রথম জব ওনার, যেহেতু পড়াশোনাটা কম ছিল, ক্লাস 8 অব্দি পড়াশোনা করেছেন, উনি পেয়েছিলেন ঝাড়ু পোছা, মানে হচ্ছে ঘর মোছা বা দোকান মোছার কাজ। যখন কাস্টমার আসতো, কাস্টমার চলে যেত, আবার পরিষ্কার করতে হতো। কিন্তু ওনার মধ্যে যেহেতু একটা কাজ করার তাগিদ ছিল, উনি কি করতেন, উনি কাস্টমারের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করতেন, কথা বলতেন, কাস্টমারকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন এবং বিক্রি করার চেষ্টা করতেন, যেটা অন্যান্য সেলস গার্লদের কাজ ছিল। কিন্তু ওনার যে ম্যাডামের দোকানে উনি কাজ করতেন, সেই ম্যাডাম এটা ফলো করে একটা সময় ওনাকে সেলস গার্লে নিয়ে চলে আসেন। তারপর করতে দেখা যাচ্ছে উনি অ্যাকাউন্টস খুব ভালো করছেন, অ্যাকাউন্টেন্ট কত টাকা প্রাইস হচ্ছে হিসেব করার আগে সেই হিসেব করে বলে দিচ্ছে কত টাকা হচ্ছে। এইসব দেখে ম্যাডাম ওনাকে আবার কাউন্টারে অর্থাৎ অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ দিয়েছেন এবং এই 2000 টাকার স্যালারি উনি এসেছেন এবং ওই দোকানে উনি 3 বছর কাজ করেছেন। ফ্রেন্ডস দেখুন, প্রত্যেকটা লোকের মধ্যে একটা কোয়ালিটি থাকে।
আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি সবিতাজির মধ্যে কি ধরনের কোয়ালিটি ছিল, শার্প মাইন্ড ছিল, এডুকেশন ছিল, হার্ড ওয়ার্ক করার এবিলিটি ছিল। কিন্তু ওই চাকরি করতে করতে উনি একটা জিনিস বুঝেছিলেন যে ওনার ম্যাডাম ব্যাংকক যাচ্ছেন, কাঠমান্ডু যাচ্ছেন, প্রোডাক্টস আনছেন এবং সেই প্রোডাক্টস বিক্রি করছেন, প্রফিট করছেন। উনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে না, আমি যদি বিজনেস করি তাহলে আমি আরো ভালো টাকা ইনকাম করতে পারবো এবং আমার লাইফটা গ্রোথ করতে পারবো। উনি ম্যাডামকে সেভাবেই অ্যাপ্রোচ করেন যে উনি নিজের বিজনেস করতে চান, এবং তারপর ওনার মতন একজন কাউকে নিয়ে এসে উনি ওই দোকান থেকে ছুটি নিয়ে উনি ওনার কাজ করতে শুরু করেন। এবং তারপর ওনার রিয়েল স্ট্রাগল আরো স্টার্ট হয়। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে প্রোডাক্ট এনে এনে দোকানে দোকানে সাপ্লাই করা। কারণ ওনার টাকা ছিল না কোনো একটা দোকান করার, ওনার টাকা ছিল না কোনো একটা বিজনেসকে स्टैब्लिश करो, এই জন্য জিনিস কিনে উনি বিক্রি করতেন। सो मैम, पहला जो आपने बिजनेस जो किया है, ये जो सप्लाई का, दुकान दुकान में जो सप्लाई का काम किया, क्या क्या सामान आप सप्लाई करते थे? मैंने सर दुकान दुकान में नहीं की, घर घर में जाके की। दुकान में बड़ा पूंजी चाहिए तो घर घर में जाके, जैसे कि लेडीज के कुर्ता वगैरह और कॉस्मेटिक्स जो मार्केट में मिलते थे होलसेल में, वो ले जाके मैं एक एक में 10-20 रुपए 30 रुपए प्रॉफिट रख के, और रेडीमेड जो टी शर्ट वगैरह, लड़के के लिए शर्ट वगैरह, बच्चे के लिए ट्राउजर्स वगैरह, ये सब कपड़े वगैरह का कभी कभी जो 100 पीस मिला, छोटा छोटा चीज, वो सब चीज का किया सर मैंने, जो घर में चाहिए होते थे। कभी कभी छोटा छोटा बर्तन जो लेडीज को दिखने में अच्छा लगे, उसमें 150-200 प्रॉफिट मिले तो वो भी ले जाती, कुछ भी जो जो मिलता था वो सब लेके घर घर में जाके एक्चुअली सेल करती थी मैं। ओके, तो फिर आपकी लाइफ में वेस्टेज कैसे आया? ऐसे करते करते मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ, मानव उत्थान सेवा समिति, मानव धर्मा करके बड़ा इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर मैं एक मेंबर भी हूँ, और वहां मैं क्या करती थी, सुबह 10 बजे से निकल के डोर टू डोर सेल करती थी, और 2 बजे तक 250-300 कभी कभी 500 तक कमा लेती थी। उसके बाद 2 बजे के बाद मैं मंदिर जाती थी आश्रम में, और वहां पर साधु संत होते और जो लेडीज होते, बाईजी बोलते हम लोग, तो बाईजी को लेके फिर मैं ये जो सत्संग में, मैं गांव गांव में सत्संग होते थे, तो उन लोगों को लेके मैं फिर गांव गांव में सत्संग के लिए जाती थी। मैं वहां पर पब्लिसिटी सेक्रेटरी थी एक्चुअली उसमें, तो मुझे साधु संत को लेके हर जगह में जाके प्रचार करना था, तो ये कर रही थी। तो उसी संस्था में एक भाई थे प्रवीण गुरुंग, वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है एक्चुअली। वो प्रवीण गुरुंग जो भाई थे, वो उनको मैं बहुत मानती थी, वो भी मुझे दीदी बोलते थे, रेस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने एक दिन बोला, दीदी दीदी एक बिजनेस कर रहा हूं मैं, और मुझे हेल्प चाहिए, आप भी मेरे से बिजनेस करो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल करती हो, तो आपको ये शायद बिजनेस बहुत सूट करेगा, तो एक दिन आप आ जाओ, मैं होम मीटिंग रखता हूँ। तो फिर एक दिन मैं भाई की बात को तो टाल नहीं सकती थी, तो मैं बोली ठीक है भाई, मैं आऊंगी। फिर उन्होंने उनके घर में मुझे बुलाया, मैं गई, और उस दिन मिस्टर किरण छेत्री, अभी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, मेरा ग्रेट अपलाइन है, तो वो उनको मिली मैं, और उन्होंने मुझे पूरा का पूरा सब कुछ बताया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग और ये कैटलॉग का बिजनेस नहीं की थी। मैं सामान उठा के सेल कर सकती थी, लेकिन कैटलॉग दिखा के सेल नहीं कर सकती थी, और लोगों को कभी मैंने ऐसे बताई नहीं थी। तो सर ने तो बहुत सारा चीज बताई, लेकिन मुझे एक चीज दिमाग में गया, चाय पत्ती, टी था उस कैटलॉग में, और चाय पत्ती का रेट था उस टाइम में 75 रुपीज, और मुझे तो ज्वाइनिंग तो करना ही था, क्योंकि भाई के ब्याह में गई थी मैं, तो भाई के लिए तो मुझे ज्वाइनिंग करना ही था, तो मिनिमम में करना था। तो मैंने बोला मिनिमम कितना सर, क्या करना पड़ेगा अभी? सर ने तो बहुत सारा बताया, तो कुछ भी नहीं घुसा मेरे दिमाग में, खाली एक ही चीज घुसा, चाय पत्ती लूंगी तो सेल भी करूंगी, पीऊंगी भी, खुद यूज भी होगा। तो फिर सर ने बोला 75 रुपीज, मैंने बोला ठीक है, तो बोला 600 रुपए, उस टाइम में आज से 10 ईयर्स बिफोर की मैं बात कर रही हूँ, तो 600 रुपए में आपका रजिस्टर होगा, ज्वाइनिंग होगा, ऐसे बोला। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो फिर चाय पत्ती का दाम कितना है? तो उन्होंने बोला कि 75 रुपीज। फिर मैंने बोली ठीक है 10 दे दो, फॉर्म साइन कर दो। फिर मैंने 10 चाय पत्ती लिए, फॉर्म साइन कर दे, उसके बाद खत्म काम, मुझे आगे कुछ नहीं करना है। तो 3 महीने तक मुझे फॉलो अप किया गया। किरण सर बोलते थे, किरण सर आते थे, भाई बोलते थे दीदी मीटिंग है, ट्रेनिंग है, आओ आओ, मैं नहीं गई, मेरे पास बहुत सारा एक्सक्यूजेस होता था।
वो जब मीटिंग होता था तो मेरे घर में गेस्ट आते थे, जब मीटिंग होता था तो मैं बीमार पड़ती थी, जब मीटिंग होता था तो मैं बहुत बिजी रहती थी। एक्चुअली वो सब कुछ एक्सक्यूजेस थे। तो फाइनली जुलाई में ज्वाइनिंग हुआ, तो फाइनली नवंबर में मैं एक मीटिंग में गई, और जब मीटिंग में गई तो 50-60 लोग बैठे थे, और एक सर आगे से बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, बहुत सारा चीज, बीच बीच में लोग तालियां भी बजा रहे थे, और मैं सबसे लास्ट बेंच में जाके बैठी, लास्ट चेयर में जाके बैठी, और मन में एक ही चीज था कि कब खत्म होगा और घर जाऊं। क्योंकि उस सुबह प्रवीण भाई का माँ, जो आंटी बोलती हूँ मैं उनको, अंबिका आंटी, वो मेरे घर में आई थी 8 बजे और बोली थी, सविता आज तो तुझे जाना ही है, आज तुझे नहीं लेके तो मैं नहीं जाऊंगी, तुझे लेके ही जाऊंगी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं मीटिंग में गई थी उस दिन। तो मन में एक ही बात था कि कब खत्म होगा, लेकिन मीटिंग का चलते चलते बीच में एक सेशन आया, वो सेशन रिकॉग्नाइजेशन का था, फास्ट स्टार्ट का, अभी मुझे वो पता चल रहा है। तो वो सबको बुला रहा था, खादा माला लगा रहा था और क्लैपिंग कर रहे थे, दो सब बोल रहे थे, बहुत सारे लोग ने बोले, लेकिन मेरे को दिमाग में नहीं आया, वो उस टाइम भी मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन लास्ट में जाके एक मैडम आई जो 65 इयर्स की थी, मतलब उतना एज का होगा, तो बोला कि मेरा नाम हरिमाया दाल है, मैं वेस्टीज में 1 महीने से हूँ, और अभी मैं फास्ट स्टार्ट 8% पहुंची हूँ, और ये मेरा फर्स्ट मंथ का चेक है, उसको भी खादा लगाया गया और लिफाफे में वो दिया गया। उस टाइम में वो लिफाफे में एनवेलोप में आते थे वाउचर, एक्चुअली 8% का। तो मैंने मेरा मेरा तुरंत मेरा जो आंख है वो उसमें गया, वो लिफाफे में, अरे इसमें पैसा भी मिलता है, अरे इतना बूढ़ी, मतलब इतना ओल्ड एज में भी काम कर सकते हैं, तो अरे इनको बोलने भी दिया जा रहा है, और उनको बहुत मान सम्मान भी मिल रहा है। तो मुझे वो चीज क्लिक हुआ, फिर मेरे मन ने बोला कि आप तू भी कर सकती है क्या, इसमें करे, अगर करेगी तो होगा। फिर मैंने मीटिंग के लास्ट में जो आगे से मीटिंग दे रहे थे, वो मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर HK चौधरी सर है, अभी अभी डबल क्राउन डायरेक्टर है। तो उनको जाके पूछा कि सर मुझे भी काम करना है। सर ने बोला क्यों करना है, क्यों करना है, ऐसे सीधा पूछे थे। तो मैंने बोला सर मुझे पैसा चाहिए, पैसा कमाना है। तो कितना चाहिए, मैंने बोला 1 लाख। पता नहीं, बोलते हैं ना कभी कभी मुंह में ना अच्छा बात ही करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सरस्वती माँ आके बैठती है, बोलते हैं ना। तो उस दिन पक्का सरस्वती माँ आके बैठी थी मेरे मुंह में, जीप में, कि मैंने बोली कि 1 लाख चाहिए। तो सर ने बोला ठीक है, मैं आपको सिस्टम सिखाऊंगा, आपको करना पड़ेगा, और 5 इयर्स तक कंटिन्यू बिना क्विट किए हुए आपको इस सिस्टम में काम करोगी तो आएगा। फिर मैंने घर में जाके सोची कि अगर मैं वेस्टिज नहीं किया तो 5 साल के बाद मेरे पास 1 लाख तो आने का जरिया नहीं है। अभी सर बोल रहे हैं 1 लाख आएगा तो जरूर आएगा होगा, तो मेरे पास हारने के लिए तो कुछ नहीं था। फिर मैंने डिसीजन किया कि मैं अभी वेस्टिज करूंगी, उस दिन डिसीजन लिया था मैंने। ওকে গ্রেট। এটা আসলে যে গল্পটা আমরা শুনলাম সবিতাজির, যে এইভাবেই কিন্তু আমরা কোনো না কোনো লোককে নিয়ে আসি এই বিজনেসে, এবং আমরা অনেক সময় যাকে নিয়ে আসি সে আচ্ছা ঠিক আছে কেউ বলছে তাই চলে আসে, কিন্তু যখন আমরা তাকে কোনো রিকগনিশন ইভেন্টসে আনি, কখনো আমরা যদি এরকম কোনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মিটিং আনি, সেখানে যখন সে অনেক সাকসেস দেখতে পায়, যখন আপনার প্রচার এবং আপনার ফেসবুকের মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যদি সে জানতে পারে, বুঝতে পারে, তখন হয়তো অনেক লোকের মনের মধ্যে হয় যে না আমি গ্রো করবো। এখানে সবিতাজি কি করেছেন, একটা ইভেন্টসে এসেছেন, একজন 65 বছরের মহিলাকে দেখেছেন ফার্স্ট স্টার্ট 8%-er হিসেবে রিকগনিশন পেতে, এবং ওনার মনে হচ্ছে এখান থেকে যখন টাকাও পাওয়া যায় তো কেন উনি করবেন না। এবং যখন উনি ওনার আপলাইনের সঙ্গে, ওনার আরেকজন আপলাইন HK চৌধুরী স্যার, যিনি ডবল ক্রাউন ডাইরেক্টর আছেন, তাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আমি এই ব্যবসাটা করতে চাই। উনি জিজ্ঞেস করেছেন কেন করতে চান, উনি বলেছেন 1 লাখ টাকা ইনকাম করতে চাই। উনি বলেছেন কি 5 বছর যদি আপনি এখানে কাজ করতে পারেন তাহলে 1 লাখ টাকা আসবে। এবং সবিতাজি এটা বাড়িতে এসে এটা চিন্তা করেছেন, আচ্ছা আমি যদি, আমার কাছে তো কোনো অপশন নেই আজ থেকে 5 বছর পরে 1 লাখ টাকা রোজগারের, কিন্তু যখন ভেস্টিজ এই অপশনটা দিতে পারে আমাকে, 5 বছর আমি লেগে থাকলে 1 লাখ টাকা পাবো, তাহলে আমি ভেস্টিজটা কেন সিরিয়াসলি করবো। শুধুমাত্র যা একজনকে না করতে পারেননি তাই জয়েন করেছেন, 10খানা চা পাতা নিয়ে জয়েন করেছেন আজ থেকে 10 বছর আগে, এবং একটা প্রথম দিকে সিরিয়াসলি করছিলেন না, ওই যে বললেন প্রথমে যে মিটিং এ আসছিলেন না, পেটে ব্যথা, এই প্রবলেম সেই প্রবলেম, আসলে সেগুলো কিছুই না, এক্সকিউজ ছিল। কিন্তু একটা মিটিং ওনার লাইফ চেঞ্জ করেছে, যে কারণে আমরা যে বলি না, এই যে আমরা ইভেন্টস করছি, এই যে ট্রেনিং করছি, এই যে প্রোগ্রাম করছি, আপনার গেস্টকে ডাকুন, আপনার ডাউনলাইনকে ডাকুন, এটা আপনি জানেন না প্রত্যেকটা লোকের মধ্যে কোয়ালিটি আছে, কিন্তু কার প্রোগ্রাম, কোন লোকটাকে কখন অ্যাক্টিভেট করে দেবে সেটা কিন্তু আমরা কেউ বলতে পারি না। तो सुविधा जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया आपका वेस्टिज का एंट्री। आप सुनना चाहेंगे
कि एज ए वोमेन बिजनेस को करते हुए कोई ऑब्स्टिकल्स आपको सामना करना पड़ा, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आया, और वो प्रॉब्लम क्या था, किस तरीके का प्रॉब्लम था और आपने कैसे वो ओवरकम किया? ओके, सो जब मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे दो लड़की थी उस टाइम में, 2010 की बात कर रही हूँ, और मेरी छोटी लड़की जो क्लास 6 में पढ़ती थी और बड़ी लड़की क्लास 8 में थी। तो मुझे हर दिन ये डर सताते थे कि जब ये कॉलेज के टाइम होगा तो इनको मैं कॉलेज कैसे एडमिशन करवाऊंगी इनको, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा तो नहीं होगा, 1-2 लाख पैसा तो नहीं होगा जो अच्छा कॉलेज में पढ़ाऊं। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिए थी वेस्टीज करने का, कि क्योंकि मेरे दो लड़की के फ्यूचर के लिए, और वो मैं एक प्लेटफॉर्म और एक कोई भी अर्निंग सोर्स ढूंढ रही थी। और उसी टाइम में जब ये क्लिक हुआ तो मैंने डिसीजन लिया। लेकिन जब मैंने काम शुरू की, तो काम शुरू करते करते तो अभी मुझे सिखाया गया कि लोगों को बताना है। तो मैं तो सेल दिन में तो 3,000-4,000 का प्रोडक्ट सेल करती थी। फिर चौधरी सर ने बोला, आप सेल करोगी मैडम तो अकेली कितने सेल करोगी, आपको तो नेटवर्क बनाना है, टीम बनाना है, लोगों को बताना है। तो फिर सर ने बोला कि क्या, फिर क्या करूं? सर ने बोला होम मीटिंग करना पड़ेगा, आपको तो सीखना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा। फिर 2-4 होम मीटिंग किरण सर ने किया, चौधरी सर ने किया, मेरे और भी अपलाइन है, अशोक मंडल सर, भीमलाल नेपाल सर, 4 अपलाइन है मेरा। तो चारों ने बारी बारी मतलब मैं लोगों को बताती, मतलब लोगों को दिखाती थी, बुलाती थी, और वो लोग जाके होम मीटिंग करती थी, मैं देखती थी। 4-5 होम मीटिंग के बाद सर ने बोला अब आपको ही करना है। तो मैंने डिसीजन तो ले चुकी थी कि मुझे इसी में काम करना है, क्योंकि यहाँ से पैसा आएगा, ये विश्वास था मेरे को। तो फिर मैंने होम मीटिंग करना शुरू की। तो लोगों के पास जाना पड़ता, सुबह उठो जल्दी जल्दी, और 9 बजे के अंदर अंदर खाना सब बच्चे के लिए रेडी करो, उसके बाद फील्ड में जाओ। तो कभी कभी कोई बोलते थे होम मीटिंग के लिए 6 बजे आना, तो मुझे तो करना था, अब मैं ना भी नहीं बोल सकती थी। कभी कभी शाम का 6 बजे भी वो मीटिंग करता था, तो आते आते 8 बजते थे, 9 बजते थे। तो फिर मुझे पीछे से बहुत सारा कमेंट सुनने को मिला, एज एक सिंगल लेडी सुबह जाती है, रात को आती है, कहाँ जाती है, ये सारा चीज, बहुत सारा नेगेटिव कमेंट पास हुआ मेरे मेरे पीछे। क्योंकि उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मेरा टीम बढ़ने लगा। तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मुझे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा ना, तो मुझे सुबह का एक सर्विस मिलेगा, उसमें जाके और फिर कल ही वापस आने का गाड़ी मिलेगा। तो आना और जाना 7 घंटा 8 घंटा का पहाड़ का रास्ता से जाना पड़ता था। तो मुझे तो एक दिन जाना लगता था, फिर एक दिन मीटिंग करना, फिर तीसरे दिन आना। तो हालांकि वहां पर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो है, सब लोग मुझे रहने बैठने का सब, वो लेडीज सब होती थी, उनके घर में ही बंदोबस्त करती थी। लेकिन फिर भी 2 दिन 3 दिन के बाद जब मैं घर आती थी, तो लोग मुझे ठीक अच्छी नजर से नहीं देखते थे। तो वो देखते थे कि ये तो कहाँ जाती है, 2 दिन 3 दिन पता नहीं कहाँ जाके आती है, ऐसी तरह से मुझे देखते थे। और कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि मैं दुबली सी पतली सी और बातें बड़ी बड़ी करती थी। और जो पहले से नेटवर्कर भी मिलते थे, जो पहले बहुत सारा नेटवर्क करके छोड़ा हुआ हो, जो सक्सेस नहीं हुआ हो, जो लड़के लोग होते थे मेरे से एजेड होते थे, और थोड़ा मेरा मतलब थोड़ा मैच्योर लोग भी मिलते थे, मतलब एजेड लोग भी मिलते थे। तो वो लोग मुझसे एडवांटेज लेते थे, और मैं जो बोलती थी तो वो हवा में उड़ा देते थे, और कभी कभी मुझे उल्टा सिखा भी देते थे। हालांकि मुझे उतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, मेरे पास एक ही ट्रस्ट था, एक ही विश्वास था कि मैं जितना बोलूंगी उतना पैसा आएगा, जितना बोलूंगी उतना लोग ज्वाइनिंग होगा। और सर ने मुझे सिखाया था, सविता मैडम अभी आप 10 लोगों को बोलेंगी तो ही एक ज्वाइनिंग होगा। तो मैं इससे सोचती थी कि जब तक 10 लोगों को नहीं बताऊंगी तो मैं एक ज्वाइनिंग नहीं होगा। इसलिए जितना भी लोग मुझे नेगेटिव बोलते थे, जितने भी लोग मुझे ना बोलते थे, फिर भी मैं लगी रहती थी। और मेन एज अ वुमन नेटवर्किंग में काम करने का, क्योंकि लेडीज काम ही नहीं करती थी नेटवर्किंग में उस टाइम में। और मेरे जैसा मुझे लगता है कि उस टाइम में भी दूसरा बहुत सारा कंपनीज थे, लेकिन उस कंपनी में लेडीज काम तो करते थे, लेकिन नेटवर्क नहीं बनाते थे, प्रोडक्ट डंप करके सेल करते थे। तो उनको तो घर से बाहर जाना नहीं है, लोगों को बीच में खड़ा होकर बोलना नहीं है, लोगों के घर घर में जाके होम मीटिंग तो करना नहीं है। तो वेस्टीज में सिखाया गया कि होम मीटिंग करना है। तो इस तरह से जब मैं
होम मीटिंग करती थी, और पहले लेडीज थी पूरा स्टेट में ही, शायद मैं पहली लेडीज होंगी कि घर छोड़ के बिजनेस बनाने के लिए बाहर गई होंगी। एक हाथ में कपड़े का बैग होता था और एक हाथ में आपका प्रोडक्ट होता था एक बैग में, और टूल्स होते थे, कैटलॉग वगैरह होते थे, और कम से कम 10 केजी का वजन, 12 केजी का वजन उठा के मैं गांव बस्ती में घर घर जाती थी। तो गांव बस्ती में होता क्या है कि जब कोई लेडीज अकेली कहीं से आती है ना ऐसे, तो लोग ना, कोई तो डिस्ट्रीब्यूटर तो समझ जाते हैं हमारा मैडम है, हमारे लिए आए, लेकिन 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, बाकी तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते थे। बाकी पीछे से ना फिर बैड कमेंट वहां भी शुरू होता था, कहाँ से आई है लड़की, लड़की होके इतने दिन से हमारे गांव में घूम रही है। इस तरह का बहुत सारा कमेंट मेरे को मिला। ओके, देखिए ये तो एक एक सोसाइटी का एक बात होता है, और ये तो है ही हम लोगों की, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे अभी तो एक बात है ना कि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। हाँ, ये एक आमिर खान का एक बहुत बढ़िया एक डायलॉग था एक फिल्म में। सो बेसिकली ये स्ट्रगल शायद बहुत सारी लड़कियों को उठाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम्स उनके साथ भी आते हैं। যেটা সবিতাজি বলছিলেন যে একজন মহিলা হিসেবে যখন সিঙ্গেল মাদার উনি কাজ করছিলেন এবং সিকিমে হয়তো উনি একমাত্র মেয়ে ছিলেন, মানে যেখানে ছেলেরা নেটওয়ার্কিং করতো তখন মেয়েরা খুব বেশি করতো না। উনি 10 বছর আগের কথা বলছেন, এবং যখন বিভিন্ন জায়গায় যেতেন, যেহেতু পাহাড়ি জায়গা, আপনার একটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরেকটা ডিস্ট্রিক্টে যেতে সময় লেগে যেত 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা। তো একদিন যাওয়া, একদিন মিটিং করা, একদিন ফেরা। তো যখন ফিরতেন লোকে ওনার পেছনে অনেক ধরনের কথা বলতেন। সাধারণত মহিলারা কাজ করতে গেলে যারা সাধারণত কাজ করে না বা ছোট মনের মানুষ হয়, তারা এই ধরনের হয়তো ভাবনা রাখেন, এবং এই ভাবনাগুলোই ছিল যেখানে কাজ করতে যেতেন সেখানেও হতো, নিজের এলাকাতে হতো। सो कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन में आपको सविता जी ऐसा महसूस हुआ कि हम काम छोड़ दे, वेस्टीज छोड़ दे इमोशनल होके? जी, अब ऐसा बहुत बार हुआ, क्योंकि धीरे धीरे करके मैंने नेटवर्क तो बनानी शुरू की थी, लेकिन सिक्किम में ऑफिस नहीं थे, कलकत्ता से सामान लाना पड़ता था 2000 किलोमीटर दूर से। ट्रेन में भी एक दिन लगता है, शाम को हम ट्रेन में बैठते हैं तो सुबह 6 बजे कलकत्ता पहुंचते हैं हम लोग। और सिक्किम से कलकत्ता जाने के लिए सिक्किम से 3 घंटे के रास्ता, पहाड़ का रास्ता होके सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा पहले तो, और सिलीगुड़ी से फिर स्टेशन जाके एनजीपी जाके कलकत्ता जाना पड़ेगा, और ऐसा था, कलकत्ता से लाना पड़ता था। हालांकि कंपनी ने कोरियर फैसिलिटीज दिए थे, हम सिक्किम से ऑर्डर तो कर सकते थे, लेकिन सिलीगुड़ी तक ही आते थे। सिलीगुड़ी से फिर सिक्किम आने के लिए रोंगपू में एक बॉर्डर है सिक्किम का, क्योंकि सिक्किम वो चाइना के नजदीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियल एक स्टेट है एक्चुअली। सिक्किम थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए अलर्ट रहता है गवर्नमेंट। तो रोंगपू से सिक्किम लाने के लिए अलाउ ही नहीं था वेस्टीज का प्रोडक्ट, क्योंकि सिक्किम में रजिस्टर नहीं था कंपनी और कोई ब्रांच ऑफिस कुछ भी नहीं था। तो एक बार मैं फील्ड में, एक हफ्ते फील्ड में जाके 40,000 50,000 का बिजनेस उठा के लाती थी। ज्वाइनिंग इस तरह से होता था कि एक फॉर्म होता था, और फॉर्म फिलअप किया, और फॉर्म के पीछे ही लोगों का प्रोडक्ट लिखते थे, नोनी एक, एलोवेरा एक, नीम एक, स्पिरुलिना एक, टोटल 1000, टोटल 1500, ऐसे करके कम से कम 12-15 ज्वाइनिंग होता था हफ्ते में। तो वो ज्वाइनिंग को भेजना पड़ता था कलकत्ता में, वो भी व्हाट्सएप नहीं था उस टाइम में, एंड्रॉइड फोन नहीं था, फैक्स करके भेजना पड़ता था, और लैंडलाइन से कॉल करना पड़ता था। मेरे पास तो शायद फोन भी नहीं था, बहुत बाद में आए फोन, बाद में वेस्टीज की वजह से ही फोन लाई मैं, छोटा सा फोन। सो फैक्स करके भेजती थी, लैंडलाइन में जाके कलकत्ता। राजेश सर अभी भी है, उनको मैं, मेरा करियर का शुरुआत से वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो मैं कभी राजेश सर को नहीं देखी हूँ, कलकत्ता का ऑफिस नहीं देखी हूँ, फिर भी मैं बोलती थी सर, हाँ बोलो सबिता जी, ऐसे आज भी वैसे ही बोलती है, पहले भी ऐसे ही बोलती थी सर। तो राजेश सर बोलते थे कि हाँ मैंने ऑर्डर भेजी हूँ सर फैक्स में। सर बोलते थे हाँ हाँ मिला। सर पैसा डिपॉजिट की हूँ, रिसिप्ट भी भेजी हूँ फैक्स में, हाँ हाँ मिला। सर बिलिंग कब होगा? कल ही होगा मैडम। फिर कल मैं फोन करती थी, सर डिस्पैच हुआ प्रोडक्ट? फिर सर बोलते थे हाँ हो गया है। ऐसे करके 3-4 दिन में सिलीगुड़ी आते थे, लेकिन सिलीगुड़ी से गैंगटोक लाने में बहुत दिक्कत होती थी। उस टाइम में फील्ड से बहुत ताना सुनना पड़ता था, मैम प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट कहाँ है।
तो इस तरह से कभी कभी मुझे गुस्से भी होती थी, प्रोडक्ट ही नहीं मिलता है, नहीं थी कभी, नेटवर्क नहीं की थी कभी, मतलब ऑफलाइन क्या है वो भी उतना ज्यादा वो नहीं था मेरे को। मैं ऑफलाइन को भी, चौधरी सर को भी बहुत गुस्से होती थी, सर प्रोडक्ट ही नहीं मिलता है, आप ला दो ना प्रोडक्ट, इस तरह से। सो उस टाइम में कभी कभी मुझे ऐसा लगता था। और सबसे मुझे डाउन पॉइंट मेरा करियर का ये है कि मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरी माँ जो है, मेरे बच्चे दो टीनेज थे, क्लास 6 क्लास 8, तो टीनेज एज थे। मेरे लड़की 12 साल का था, 14 साल का था। तो जब उस टाइम में लड़की को माँ का साथ होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उस टाइम में मैं घर नहीं होती थी, मेरी माँ होती थी उनके साथ। तो मैं चाहे उसका एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, मैं बाहर ही रहती थी। मेरे ऊपर भूत सवार हुआ था कि मैं कैसे भी करके पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, मेरे बच्चे के लिए। इनको मैंने शुरुआत में अच्छा स्कूल नहीं पढ़ा पाई, मैंने इंग्लिश स्कूल तो इनको नहीं पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई मैंने दोनों लड़की को। लेकिन मेरे दिमाग में एक भूत सवार था कि जब ये लोग क्लास 12 10 खत्म करेंगे तो अच्छा कॉलेज पढ़ाऊंगी और वेस्टीज से पैसा कमाऊंगी। तो मेरे ऊपर ऐसा भूत सवार था, तो मैं फील्ड में जाती थी, तो इनको कभी मैंने खाना ठीक से बना के नहीं खिलाए। और ये दोनों को भी माइंडसेट की थी कि बेटी मुझे काम करना है, तुम्हें घर संभालते हुए पढ़ना है। जो नानी है ना, जो मेरी माँ है, नानी है, वो तो खाली तुम्हारे देखने के लिए बैठेगी, वो तो पका के नहीं देने देगी, लेकिन पकाना भी तुम्हें, अपना खुद का ध्यान करना, सब कुछ तुम्हें ही करना है, पढ़ना भी है, मुझे कमाना है क्योंकि तुम्हारे लिए कमाना है। और ये दोनों ने भी मेरे से बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन कभी कभी जब बीमार, जब मैं 2 दिन 3 दिन के लिए बाहर जाती थी, सिक्किम से बाहर भी जाने लगी धीरे धीरे, दार्जिलिंग जाती थी, कालिम्पोंग जाती थी, भूटान के बॉर्डर जयगांव जाती थी। तो उस टाइम में मैं 1 हफ्ते तक बाहर रहती थी, अपना गाड़ी भी नहीं था, टैक्सी से जाना होता था। एक धीरे धीरे करके मैंने एक लैपटॉप भी ली थी, तो एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कपड़े का बैग, एक हाथ में प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन का, तो ये लेके मैं जाती थी। लेकिन कब एक दिन फोन आया कि मेरा जो छोटी लड़की, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, वो उसके नी में फ्रैक्चर हो गया है, और मैं 5 दिन के लिए गई थी और आना भी है तो मुझे 2 दिन लगेगा। तो उस टाइम में मुझे एक मन से लगा कि नहीं नहीं होगा अब मेरे से। फिर भी उस टाइम भी मैं घर नहीं आई, मैं मीटिंग खत्म करके ही आई, क्योंकि हॉल वहां पर लोगों के ऑलरेडी 3 4 मीटिंग फिक्स होते थे, तो मैं वापस नहीं आ पाती थी। तो इस ऐसे ऐसे सिचुएशन मैंने ली। और सबसे बुरा ये लगता है मुझे कि इनका कभी, मेरे 2 लड़की के बर्थडे में घर में नहीं रही मैं, जब से वेस्टिज शुरू की। बर्थडे एक का 18 अगस्त में है, एक का 9 जुलाई में है, लेकिन कभी कभी जाते हुए भी बड़ा मीटिंग फिक्स हो जाता है, तो इसलिए मैं इनका बर्थडे में भी कभी नहीं रही। तो उस टाइम में भी मुझे बुरा लगता था, कभी कभी सोचती थी कि नहीं करूं क्या। फिर मैं जब ये दोनों को सोचती थी तो मुझे ऐसा हिम्मत आती थी कि नहीं करना है, एक दिन ऐसा आएगा हम साथ में रहेंगे और पैसा भी बड़ा आएगा और एंजॉय करेंगे। और फिर वो सोच के साथ मैंने क्विट नहीं की। ओके तो कभी कभी जो ऐसा सिचुएशन कभी कभार आ जाता है जहां पे लगता है कि हम बिजनेस छोड़ दे, बट तब आप सिर्फ वो ही सोच, क्योंकि किस लिए आपने स्टार्ट किया, यस। आपकी बेटियों के लिए किया आपने, आपको अच्छा पैसा कमाना है, उनको अच्छे यस। कॉलेज में এন্ট্রি করানা है। यस। অর্থাৎ ছবি যে কথা আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে ওনাকেও যে প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে, যে বাচ্চাকে ছেড়ে ছেড়ে বাইরে থাকা এবং তার জন্য ফ্যামিলিতে কোনো প্রবলেম হলে তখনই মনে হওয়া যে আমি কি ব্যবসাটা করতে পারবো, বা এই এই যে স্ট্রাগল টাইম, যখন আমরা আসলে স্ট্রাগল করি তখন অনেক সময় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, যার কত পরিশ্রম করব। তো সেই সময়ও কিন্তু আমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে না আমার গোল, কেন আমি শুরু করেছিলাম, কেন আমি শুরু করেছিলাম, কোন স্বপ্নের জন্য আমি শুরু করেছিলাম। যদি আমি সেই স্বপ্নের কথা মনে করতে পারি তাহলে আমি আবার ট্র্যাকে চলে আসব, আমি এই জায়গাটা থেকে কখনো ছেড়ে যাব না। ओके तो सुविधा जी, तो अभी तो आपका टूर वगैरह स्ट्रगल सारे सुन लिया, थोड़ा बताइए आपकी वेस्टीज के सक्सेस स्टोरीज, वेस्टीज के आपको सफलता कैसे मिले, किस तरीके से आपने काम किया और किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को, ये जो चेंज है जहां पे आप खेती बाड़ी करते थे, जहां पे आप क्लास 8 तक बहुत जबरदस्ती अपने आप कमा के क्लास 8 तक पढ़ाई किया है, जहां पे आपका पहला जो फैमिली लाइफ था वो सक्सेसफुल नहीं था, आप जो जहां पे नौकरी में थे, बिजनेस में थे, वहां पे भी बहुत आपने स्ट्रगल किया, और इतना टाइम हम लोगों ने आपका पेन और स्ट्रगल ही सुना है। बट मैं आप सुनना चाहते हैं कि आपका जो लग्जरी लाइफ हुआ है, आपको जो सक्सेस मिला है वेस्टीज से, वो कैसे मिला है, थोड़ा शॉर्ट में वो बताइए। सो
बहुत सारा चीज किया। हाँ, वो कहते हैं ना, कोई चीज आप दिल से चाहते हो, दिल से चाहते हैं तो पूरा कायनात और पूरा भगवान सब कुछ आपके वो जो चाहे आपने उसके ऊपर लग जाते हैं उसको पूरा करने में। ऐसा ही हुआ मेरे लाइफ में भी। और 2010 से करते करते 2013 तक मेरा इनकम 30,000 पहुंचा, कि कभी मैंने 30,000 एक साथ मेरे अकाउंट में नहीं आया था, फर्स्ट टाइम वेस्टीज से आया। ठीक है, तो 30,000 तक पहुंचा। उसके बाद मैंने कार फंड में देखा तो 1.5-2 लाख जमा हुआ है। फिर मैंने फर्स्ट मेरा कार ऑल्टो 800 मारुति का ऑल्टो 800 ली उस दिन। वो मेरा सबसे लाइफ का बेस्ट डे था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी प्राइवेट कार नहीं लिए थे एक्चुअली। मैं फर्स्ट लेडी हूँ और फर्स्ट मेंबर भी हूँ फैमिली का, तो मैंने कार ली। उसके बाद तो क्या, कार देखने के बाद तो फिर धमाका हो गया, अरे बाप रे सविता के पास कार आ गया है वेस्टीज से। फिर जो पहले ना ना करते थे वो भी मेरे टीम में आने लगा, हाँ हाँ करके। और वो लोग भी अभी वो लोग भी कार ले चुके हैं, मतलब अभी वो लोग भी सक्सेस हो चुके हैं। तो फिर चेक होना क्या था, 50,000 पहुंचा, 1 लाख पहुंचा। फिर मैंने, अभी मेरे पास सेकंड कार है स्कॉर्पियो, जो अभी मेरे गांव में मेरा एरिया एमएलए जो है वो स्कॉर्पियो में आती है, और सेकंड बंदा हूँ मैं, स्कॉर्पियो में जाती हूँ। ओके, ये वेस्टीज का सक्सेस है, जो मैंने पेन सहा था ना पहले, उसका ये रिजल्ट है। और मैंने बोली थी ना, मैं बर्थडे में बच्चे के साथ नहीं रहती थी, जब बच्चे बीमार पड़ती थी तब भी मैं नहीं होती थी, मैं बाहर होती थी। तो आप सोचो ना कि एक माँ को कैसा क्या गुजरती होगी, किस तरह का पेन होता होगा उस टाइम में। लेकिन अभी देखो 8 महीने से हम लोग घर में है, पूरा लॉकडाउन, देश लॉकडाउन, पूरा वर्ल्ड ही लॉकडाउन, कोई कुछ काम नहीं करने पा रहा है। लेकिन अभी उस टाइम में जो पेन सहा था ना, अभी हम लोग 8 महीने से साथ में घर में है, हर महीना 6 डिजिट का इनकम आते हैं। कोई भी महीना ऐसा नहीं हुआ कि इनकम कम हुआ, लॉकडाउन हुआ, ज्यादा हुआ। इस लॉकडाउन में इनकम डबल हुआ सर। तो ये नेटवर्क का पावर ये है। तो इनकम डबल हुआ। अभी हर साल हम फॉरेन में कॉन्फ्रेंस होते, फॉरेन घूमने जाते। इस टाइम मैंने मेरी लड़की को भी लेके गई। उस टाइम में मैंने मेरे लड़की को पढ़ते समय एक कॉफी नहीं दी थी, एक दूध का ग्लास नहीं दी थी, खाने का टाइम में खाना नहीं दी थी, वो खुद बना के खाई। लेकिन इस बार मैंने उसको फॉरेन में ले जाके 7 स्टार होटल में खाना खिलाया, 5 स्टार होटल में खाना खिलाया। तो ये सब चीज, अभी बैंक बैलेंस अच्छा हुआ, अभी पैसे का कोई तंगी नहीं। हर साल ऐसा होता है कि कब कंपनी फॉरेन का टूर का ऑर्गेनाइज करे, हम घूमने चले जाए, टाइम का फ्रीडम मिला यहाँ पर। तो ये सब चीज अभी यहाँ से मिला है। अभी मैं ब्रांडेड चीज लगाती हूँ, पहले वेस्टीज से पहले मॉल क्या होता है पता ही नहीं था, ब्रांडेड पर्स क्या होता है, बैग क्या होता है, कपड़े क्या होता है पता ही नहीं था। अभी जब भी कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज, मेरे लड़की को भी, बच्चे को भी लेने जाऊँ ना, तो मैं ब्रांड ही लेती हूँ। तो ये सब चीज अभी वेस्टीज ने दिया है सर। ओके, ग्रेट। तो एक जो आपका मतलब एक मीडियोकर लाइफस्टाइल था, या बहुत जो गरीबी आपने जो देखा है, वहां से आपने अपने आप को টোটালি চেঞ্জ किया एक अच्छा লাইফস্টাইল। সবিতাজির কথা শুনেছেন, যিনি লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রোডাক্ট বিক্রি করতেন, আজকের দিনে ওনার লাইফস্টাইলটার কথা একটু শুনুন। যে প্রতি বছর উনি দুবার করে বিদেশ যাচ্ছেন, নিজের মেয়ের জন্মদিনে থাকতে পারেননি, সময়ে খাবার দিতে পারেননি, তাদের যা প্রয়োজন ছিল অনেক সময় মেটাতে পারেননি, সে সময় যে স্যাক্রিফাইসটা উনি করেছেন, আজকে লাস্টের ট্রিপে উনি মেয়েকে নিয়ে গেছেন, 7 স্টারে রেখেছেন এবং সেখানে খাইয়েছেন এবং সেই লাইফস্টাইলটা দিচ্ছেন। এবং উনি বলছেন যে ব্র্যান্ডেড চিজ কি হতো, ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট কি হতো, ব্যাগ কি হতো, ড্রেস কি হতো, ওনার জানা ছিল না। কিন্তু ভেস্টিজ আজকে ওনাকে এমন লাইফস্টাইল দিয়েছে, এখন ব্র্যান্ডেড জিনিস ছাড়া উনি অন্য কিছু ইউজ করেন না। প্রথম গাড়ি ছিল অল্টো, এখন ওনার কাছে আরেকটা গাড়ি আছে স্করপিও। এবং ওনার যে গ্রামে উনি থাকেন, যে জায়গায় উনি থাকেন, সেখানকার এমএলএ তার কাছে স্করপিও আছে, সেকেন্ড স্করপিও আছে সবিতাজির কাছে। सो अमेजिंग 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 स्टोरी। मैम, आपका हाईएस्ट चेक कितना है, एवरेज आप कितना महीने में कमाते हैं, और आपका जो 3 इयर्स आपको लगा 30,000 में जाने के लिए, और अगर अगर आपके पास कैलकुलेटर है, या आप अगर कभी कैलकुलेशन अभी पहले किया है कि इस 10 सालों में कितना करोड़ आपने कमाया होगा, ये अगर आप बताते हैं हम लोग। अभी मैं फैमिली का पहला लड़की हूँ जो करोड़ कमाई हूँ सर। ओके। करोड़ कमाई हूँ, फैमिली का पहला मेंबर हूँ मैं, करोड़ कमाई हूँ। और अभी मैं पूरा फैमिली, पूरा रिलेटिव्स का, पूरा मेरा जितना भी रिलेटिव सब
सबसे पहला मैं मेंबर हूँ जो अभी मेरा इनकम महीने का 4 लाख और 4 लाख के कभी कभी आसपास कभी 4 लाख आते हैं, तो मैं पहला मेंबर हूँ। अभी मेरा 10 लाख जाएगा सर जल्दी। ओके, ग्रेट 10 ग्रेट लाख ग्रेट। जाने वाला है, पूरा ओके स्ट्रक्चर रेडी है सर। ओके, तो अब आप सही स्ट्रक्चर वेस्टेज में बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको मतलब पकड़ के रखना है। যে কথাটা আমি আপনাদেরকে বলছিলাম, সবিতাজি প্রথম ওনার ফ্যামিলি মেম্বার যে কোটি টাকার উপর রোজগার করেছে, প্রথম ফ্যামিলি মেম্বার যে প্রতি মাসে 4 লাখ টাকার উপর রোজগার করছেন। সো কি করেছেন উনি এই বিজনেসের জন্য? এই বিজনেসে জাস্ট স্ট্রাগল করেছেন। প্রত্যেককেই করতে হয়, আমাকেও করতে হয়েছে, যেরকম সবিতাজিকে করতে হয়েছে, যেরকম আপনাকেও করতে হচ্ছে যারা আজকে আপনারা শুনছেন। বাট আপনি যদি লেগে থাকেন তাহলে এই বিজনেসে আপনি পেতে পারেন। सुविधा जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ कि आप अगर आपका कुछ चीज आप हमको बोले थे कि आप दिखाना चाहेंगे, सो आप दिखाइए, उसके बाद आप मेरे को होस्ट करिएगा फिर दोबारा। ठीक सर। You are host now, so you can show whatever you want to show us. सर स्क्रीन आया? हाँ, स्क्रीन आया। मैं अपना जो मेरा लाइफ चेंज हुआ है वेस्टीज से, उसका छोटा सा मैंने ये स्लाइड बना के रखी हूँ, तो आप लोग को प्रेजेंट कर रही हूँ। और थैंक यू गॉड है, बिना गुरु के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और मेरा ये मैंने आपको एक चीज नहीं बोली और मैं माफी चाहती हूँ। बेस्टीज के सक्सेस के साथ साथ मैंने लाइफ में भी सक्सेस ली हूँ। मैंने फिर से लाइफ सेट की हूँ। ये मेरा मदर इन लॉ फादर इन लॉ से दोनों मेरा अपना माता पिता से भी ज्यादा है, और मेरा फ्रेंड भी है, दोनों मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। अभी मैंने फिर से लाइफ सेटिंग की। और ये मेरा माँ है जो मेरे बच्ची को ख्याल रखती थी मेरे बाद में। और ये मेरा हस्बैंड है जो अभी मैं फिर से लाइफ सेट कर चुकी हूँ, तो अभी बहुत अच्छा लाइफ है मेरा। और मेरा ग्रेट अपलाइन नीलेश सर, दीपाल पात्रा वाला मैम, मिलेनियर्स वर्ल्ड वाइड का फाउंडर जो हमें एडुकेट करते हैं। मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर एच.के. चौधरी सर, उषा मैडम जो डबल क्राउन डायरेक्टर है, अशोक मंडल सर जो बिहार से है, मेरा अपलाइन है, क्राउन डायरेक्टर है। भीमलाल नेपाल सर जो सिक्किम से ही है, इन्होंने ही मुझे मार्केटिंग प्लान सिखाया था। और किरण सर जिन्होंने मेरा फॉर्म साइन किए थे, यही वो बंदा है जो एक भगवान ने भेजा हुआ एक फरिश्ता है जिन्होंने मेरा लाइफ चेंज कर दिए थे एक फॉर्म साइन करके। और रीता मैडम। और ये देखो मेरा हाल ऐसा था, जब मैं शादी की थी तो मैं 17 इयर्स की थी। शादी के बाद पूरा लेडी बन गई थी मैं। ये मैं 18 इयर्स की थी शायद। और जब मैं सिंगल हुई थी तो ये मैं दुबली सी पतली सी, और कैसा होता है ना जब जीवन लाइफ में दुख आता है, पैसा नहीं होता है, अपना छोड़ के चले जाते हैं, पीछे देखो कोई नहीं है, आगे देखो कोई नहीं है, साथ में 2 लड़की है, तो ये मेरा हाल था। मेरा जो लड़की है दोनों का एज इतना था जब मैं अकेली हुई थी। तो इसके बाद मैंने इनको घुमाने ले गई थी। और जब मेरा फर्स्ट वेस्टीज का पहला आउट ऑफ सिक्किम का टूर था, मैं ये गई थी बाहर जयगांव में, तो वहाँ का फील्ड का पिक्चर है, ये देखो। मैं उस टाइम भी बहुत पतली थी। और ये मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग है जो कलकत्ता हिंदुस्तान होटल में की थी, VLC ट्रेनिंग है एक्चुअली। और ये पूरा का पूरा ग्रुप है। और ये मेरा फर्स्ट वेस्टीज से मिला हुआ सर्टिफिकेट्स। ये मेरा फर्स्ट फोटो है, जब डायमंड बनी थी तो पोस्टर लगाना था, तो ये मेरा फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन है जो मेरा फोटो ना पोस्टर में आया था। और ये मेरा ग्रेट अपलाइन भीमलाल नेपाल और किरण सर के साथ में हूं मैं। और मेरा लाइफ इस तरह से चेंज हुआ है। मैं दीपक सूद सर से ट्रॉफी ले रही हूँ यहाँ पर। और फिर क्या बनना था, मैडम बन गई थी स्पीकर मैं भी स्पीच दे रही हूँ। और इसके बाद ये मेरा हस्बैंड है, देखो बेस्टीज ने मुझे हेल्थ के साथ वेल्थ के साथ साथ मुझे एक अच्छा जीवन साथी भी दिया, जो अभी हमारा लाइफ पूरा परिवार के साथ बहुत अच्छा बीत रहा है। और ये मेरा UCD का अवार्ड मैं ले रही हूँ। और ये इस तरह से मेरा लाइफ चेंज हुआ है। इस तरह से ये गोवा कन्वेंशन का है। हम लोग अभी इस तरह से बाहर एंजॉय करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। लीडिंग लेडीज में भी फोटो आया है, अभी मैं लीडिंग लेडीज भी हूँ कंपनी का। और ये रिकॉग्नाइजेशन वुमन एम्पावरमेंट का, ये पूरा का पूरा ये इस टाइप का लाइफ अभी मेरा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए,
कहाँ से कहाँ वेस्टीज, अगर आप वेस्टीज मन से करेंगे ना तो आप सोचोगे भी नहीं कि आप कहाँ तक आप पहुंच सकते हो। और क्रूज पे गए थे हम लोग इस बार, फिर पटाया भी गए, बैंकॉक भी गए। और ये फॉरेन का पिक्चर है एक्चुअली, ये मुंबई का है और ये क्रूज के टॉप का। और मेरे ग्रुप से भी बहुत सारे लेडीज अभी काम कर रहे हैं और फॉरेन ट्रिप भी जा रहे हैं। और ये छिचुम भुटिया है जो महीने का 1 लाख से ऊपर कमाती है। और ये देखिए, ये मेरा बड़ी लड़की, मैं बोल रही थी ना बर्थडे में नहीं रहती थी, तो लास्ट ईयर मैंने इसका बर्थडे ना सिक्किम का सबसे टॉप होटल मेफियर में की थी, जो स्टार होटल है। तो अभी सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरा, ये मेरा 2 लड़की है और ये कृपाल जी का लड़की है 2। ये दोनों, इनको भी मैं पढ़ाती हूँ। उसके बाद वेस्टीज के कमाई से मैं ये दोनों को भी पढ़ाती हूँ। अभी 6 लड़की को पढ़ाती हूँ मैं। पहले 2 लड़की को पढ़ाने में दिक्कत आती थी, अभी मैं 6 लड़की को पढ़ाती हूँ। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरा। ये देखिए, ये 2 लड़की को आपने अडॉप्ट किया है? यस सर। ओके, ग्रेट मैम। और ये मेरा धुरंधार लेडीज ग्रुप है जो महीने का 1 लाख के ऊपर कमाते हैं। और ये हमने एक थीम बनाए थे यूनि ड्रेस का और पार्टी किए थे होटल में। ये देखिए, और ये मेरा अभी का कार है। और ये मेरे ग्रुप से दीपा गुरु हाउसवाइफ थी, इनका भी कार आ गया है। देवी मैम, इनका भी कार आ गया है। डोमा मैम, इनका भी कार आ गया है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताए। अभी मैं सर को होस्ट बनाती हूँ। ग्रेट सुविधा जी, ये तो बहुत बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपका। इतने लोगों को आपने, ये जो आपका हार्ड वर्क है, आपका डिसीजन है, इस डिसीजन में कितने लोगों का जिंदगी आपने चेंज किया है। yes, sir. और आपके टीम में लोग अभी गाड़ी ले रहे हैं, आपके टीम में लोग लेडीज इतने कमा रहे हैं, दैट इज एन अमेजिंग। सो लोग आज तो सिक्किम में यू आर एन एग्जाम्पल, ठीक है, जिनका कुछ नहीं था। हम लोग क्या देखते हैं कि अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारे बिजनेस, सारे अच्छे चीज उनको मिलता है। बट अगर किसी के पास डेडिकेशन हो, किसी के पास डिजायर हो, वो भी कर सकता है अगर उसके साथ एक राइट प्लेटफॉर्म मिले। आप जिंदगी में कभी नेटवर्किंग नहीं किया, बट पहला नेटवर्किंग वेस्टीज किया, यू आर लकी। आप जानते हैं, मैंने वेस्टीज के पहले 2 नेटवर्क किया, वहां पे भी हम सफल थे, वो भी अच्छे कंपनी थे, बट वेस्टीज जैसा कुछ भी नहीं था। यस सर। তো আমি আপনাদের দর্শকরা যারা আছেন তাদেরকে একটা কথাই বলবো যে সবিতাজির স্টোরি আজকে আমাদেরকে কিভাবে ইন্সপায়ার করেছে সেটা দেখুন। যে ক্লাস 3 অবধি পড়ে পড়াশোনা করতে পারেননি, তারপর অনেক কষ্টে নিজে থেকে পড়াশোনা করে ক্লাস 8 অবধি পড়েছেন। এবং আমার দারুণ লেগেছে ম্যাডাম তার নিজের দুটো মেয়েকে পড়াশোনা করিয়েছেন। কৃপালজি, যাকে উনি লাইফ সেট করেছেন, ওনার হাজবেন্ড, এখনকার বর্তমান হাজবেন্ড, তারও 2 মেয়েকে তিনি পড়াশোনা করিয়েছেন। এবং তারপর উনি 2 মেয়েকে কি করেছেন, অ্যাডপ্ট করেছেন এবং তাদেরকেও পড়াশোনা করাচ্ছেন। হয়তো যে সুখটা, যে সময়টা নিজের বাচ্চাদের একটা ভালো স্কুলে পড়াতে পারেননি, এরকম বিগ হার্টেড, এলিফ্যান্ট হার্টেড কজন লোক আপনি পাবেন। দেখুন, সফলতা তাদের কাছেই পাওয়া যায়, সফল তারাই হয় যাদের মধ্যে একটা এক্সট্রা एक्स फैक्टर থাকে। मैडम मैं तो आपको हम क्या बोले, किस तरीके से आपका मतलब आपको थैंक बोले, बिकॉज आई एम इंस्पायर्ड। जिस तरीके से आपने ये चीज किया है कि 4 लड़की होते हुए भी आपने और भी 2 लड़की को एडॉप्ट किया, उनको अच्छा परवरिश करने के लिए, अच्छा उनको स्कूल में भेजने के लिए, जो आपका चाह था, आपका जो इच्छा था कि आपकी लड़कियों को आप इस तरीके की स्कूल में भेजेंगे, तो अभी आप 2 लड़कियों को आपने एडॉप्ट किया और उसको आप अच्छे पढ़ाई दे रहे हैं। Yes, sir. That is amazing. God will bless you abundantly. आपके पास 10 लाख नहीं मैम, 1 करोड़ का चेक हो, मैं आपके लिए इतना प्रे करूंगी। Thank you so much, sir. I want you to earn so much कि आपको वो ये सिर्फ आपकी जिंदगी को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। और सिर्फ आप नहीं बोल रहे हैं, आप एक्चुअली करके दिखा रहे हैं। Yes, sir. करके दिखा रहे हैं। Yes, sir. आज यहाँ बहुत सारे लेडीज है जो आपका बातें सुन रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो आपका बातें सुन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 4000 से ज्यादा लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, 4000 से ज्यादा। सो उनके लिए आपका कोई भी टिप्स आप देना चाहेंगे? यस,
मैं ये ही मैसेज देना चाहूंगी कि हर इंसान खुद का एक आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट जो एक आर्किटेक्ट क्या करता है, एक घर को जो खाली होता है उसको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया देके एक शानदार घर बनाते हैं, राइट। शानदार घर बनाते हैं और बहुत अच्छा, किस टाइप का आर्किटेक्ट, मतलब बहुत अच्छा अच्छा आर्किटेक्ट होता है और सोच में भी नहीं आता है, जब वो फिनिश करके देते हैं ना घर, तो हमें मुंह से आता है वाओ कितना अच्छा बना दिया, राइट। तो आपका लाइफ भी एक घर है और आप खुद एक आर्किटेक्ट हो आपका लाइफ का। आप कैसा बनाना चाहते हो आपका लाइफ। सुविधा जी, कैन यू हियर मी? आपका वीडियो आई थिंक आपका इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ওকে সুবিধা জি, আবার লাইনে আস্তে আস্তে আমি ওনার একটা কথাই বলতে চাই। উনি বলছেন যে আপনার লাইফের আর্কিটেক্ট আপনি, অর্থাৎ আপনার লাইফটা কেমন হবে, কিভাবে আপনি জীবনযাপন করবেন বা আপনার জীবনে আপনি কি পেতে চান, সেটার জন্য আপনাকেই প্ল্যান করতে হবে, আপনাকে আর্কিটেক্ট হতে হবে। তো সেই জায়গাটাই উনি আমাদেরকে বোঝাতে চাইছেন। আমার মনে হয় ওনার নেটওয়ার্কটার প্রবলেমের কারণে উনি হ্যাঁ নেটওয়ার্কের প্রবলেমের কারণে উনি চলে গেছেন। হয়তো আবার অ্যাড হবেন, বাট আমরা প্রোগ্রামের শেষ মুহূর্তে চলে এসেছিলাম। কিন্তু ফ্রেন্ডস, হোয়াট অ্যান অ্যামেজিং স্টোরি, হোয়াট অ্যান অ্যামেজিং স্টোরি। আজকে আপনি ভাবুন, আজকে আপনার আমার সমস্যা কি এত কঠিন? আজকে আপনি আমি কি এত কঠিন পরিস্থিতিতে ছিলাম? আজকে আপনার আমার ফ্যামিলিতে আমাদের বাবা মারা কি আমাদেরকে এতটাই ইগনোর করেছিল? না ফ্রেন্ডস, হয়তো আমাদের করেনি, কিন্তু তারপরেও আমাদের কাছে অজুহাতের শেষ নেই। তারপরেও আমরা এই বিজনেস করতে পারবো কি পারবো না আমরা বুঝতে পারছি না। আজকের দিনে অনেক লোক আপনাকে হয়তো মোটিভেট করছে, আপনাকে হয়তো আবার পেছন থেকে বলছেও যে এই বিজনেসে হবে না। অনেক সময় অনেক লোক সফলতা না পেয়েও আপনাকে ডিমোটিভেট করার জন্য অনেক কিছু বলতে পারে। কিন্তু যদি আপনি আপনার লক্ষ্যে ঠিক থাকেন, যদি আপনি আপনার লক্ষ্যে অবিচল থাকেন, তাহলে আপনার কাছে সফলতা আসবেই। এবং আজকে এই সবিতা ম্যাডামের বা সবিতা ছেত্রী 10 বছর হয়তো সময় লেগেছে না, বাট এই 10 বছর আগে যে জীবনটা ছিল, আজকে তার লাইফ 100% চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি ওনার হাজবেন্ডকেও চিনি, কৃপাল, মিস্টার কৃপাল, হোয়াট অ্যান অ্যামেজিং গায়। উনি একজন সিঙ্গার, খুব ভালো গানও করেন। এবং আজকে উনি ওনার ওয়াইফকে, সবিতাজিকে 100% সাপোর্ট করছেন এবং হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজন এক্সিলেন্ট কাজ করছেন। এবং শুধু তাই নয়, নিজেদের দুটো বাচ্চা, 4টে বাচ্চার পাশাপাশি আরো 2টো বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করে তারা লাইফে কি খুশি আছে। ফ্রেন্ডস, একটা জিনিস একটা কথা আছে, ফিউচার বিলংস টু দোজ হু মেক থিংস হ্যাপেন, নাথিং লেফট ফর দোজ হু ওয়াচ। রিওয়ার্ড গোজ টু দোজ হু মেক থিংস হ্যাপেন, নাথিং লেফট ফর দোজ হু ওয়াচ। ফিউচার তাদেরই হয়, রিওয়ার্ড তারাই পায় যারা কোনো কিছু করে দেখায়, যারা জীবনে তাদের জীবনের ঘটনা তারা ঘটায়। বাট যারা শুধু দেখতে থাকে, যারা শুধু ওয়াচ করতে থাকে, তাদের কাছে কিন্তু রিওয়ার্ড আসে না। তো আমি আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো যে আমরা একটা অ্যামেজিং 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 স্টোরি আজকে শুনলাম, যে স্টোরি আমাকে মোটিভেট করেছে। যারা শুনছেন হয়তো আপনাদের মোটিভেট করেছে, যারা আছে গেস্ট হিসেবে শুনছেন বা যারা আজকে ভেস্টিজের ডিস্ট্রিবিউটর আছেন। ফ্রেন্ডস, আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। আপনার জীবনের আর্কিটেক্ট আপনি, যেরকম সবিতাজি বলে গেলেন। তো আমি আপনাদেরকে এটা একটা কথাই বলবো, কথা বলে বিদায় নেব, যে জীবনটা শেষ হয়ে যায় যদি ইফ ইউ আর নট স্যাটিসফাইড উইথ ইউর ইনকাম, যদি আপনার রোজগারে আপনি স্যাটিসফাইড নন, যদি আপনার লাইফস্টাইলে আপনি স্যাটিসফাইড নন, বা যদি আপনি আপনার লাইফে অনেক দুঃখজনক সিচুয়েশন আছেন যেরকম সবিতাজি ছিলেন, তাহলে আমাদের এই অপরচুনিটি, ভেস্টিজ একটা প্ল্যাটফর্ম হতে পারে। আপনিও আরেকজন সবিতাজি হতে পারেন, আপনিও আপনার সফলতার কাহিনী আজ থেকে 2 বছর 3 বছর পর আমার মতন কারোর সাথে শেয়ার করতে পারেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, উইশ ইউ ওয়েল।